My dear students, Department of Sanskrit Education Rajasthan welcomes you in online English classes for 12th Standard English Literature. Myself, Munish Chand Sharma, lecturer, Government Varisht Upadhyay Sanskrit School, Bilochi, Jaipur. Today is our lesson, a poem, Kubla Khan, written by Samuel Taylor Coleridge. In previous lessons, we have learned about this poem, and today we will learn the last part of this poem. So, listen carefully the stanzas of this poem, and after that I will explain you these stanzas in English and in Hindi. Now listen the stanzas of this poem for today's lesson. And all should cry, beware, his flashing eyes, his floating hair. Weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honey dew hath fed, and drunk the milk of paradise. Now listen the explanation of these lines. These lines are from the poem Kubla Khan written by S.T. Coleridge. In these lines, poet says that if he were able to revive the song and music he once heard in his dream from Abyssinian maid, he could build in air the pleasure dome which Kubla Khan had ordered to be built in Xanadu. All those who heard him would see the sunny pleasure dome with caves of ice swimming before their eyes. These lines beautifully depict the poet's state of frenzy. The recollection of the music would so much inspire him that he would be led the poetic creation. He would be led the poetic creation in this state of extreme ecstasy. His eyes would shine brightly and his hair would fly in the air. The poet would look so dreadful that all those present would be horrified. They would close their eyes, they would look upon the poet as a heavenly being who has eaten honey dew and has drunk the milk of paradise. They would fear him lest he should cast a spell on them. They would go round him 3 times in order to escape his spell. This portrayal is a strange blending of natural and supernatural. Every line here emphasizes the atmosphere of mystery, strangeness, and horror. Now, I will explain these lines in Hindi. ये जो पंक्तियां हैं जो कि एस.टी. कॉलरेज के द्वारा लिखी गई उनकी फेमस एक स्वप्निल कविता जिसका नाम कुबला खां है उससे ली गई है। इन पंक्तियों के अंदर एक असाधारण रोमांचक घटना का वर्णन करते हुए कवि अपनी इस असाधारण रोमांचक रचना को इन लाइनों में प्रस्तुत करता है और कहता है कि वह यदि अपनी उस स्वप्निल कल्पना का पुनरावलोकन कर सकने में समर्थ हो सकता जिसमें उसने एक एबिसिनियन कुमारी को गीत गाते सुना था, तो
तो कुबला खान ने जिस स्वप्निल आनंद महल की रचना का निर्देश जेनाडू में दिया था वह उसे वायु में भी बना देता। ये कवि कहता है कि कुबला खान ने जो एक कल्पना की थी प्लेजर डोम बनाने की, ऑर्डर दिया था बनाने के लिए, उसको कवि हवा के अंदर भी बना सकता था, बशर्ते कि उसे उस एबिसिनियन जो कुमारी थी जिसका उसने गाना सुना था डल्सीमर के संगीत के ऊपर, यदि उसे ये याद हो जाता, उसका पुनरावलोकन करता, तो वो निश्चित रूप से उस महल का निर्माण वायु में भी कर देता। ऐसा कवि कहता है। आगे कहता है कि वे सब जिन्होंने उसे सुना वे सब उस जगमगाते से स्वप्न ग्रह को जिसे बर्फानी परिवेश में चमका रखा था, प्लेजर डोम would see the sunny pleasure dome with caves of ice swimming before their eyes। ये उनकी आंखों के सामने, जो भी उसे सुनता तो उनकी आंखों के सामने इसे साकार होते देखते, उस महल को बनता हुआ। कवि की उस वायु में बनाई हुई, हवा में बनाई हुई उस महल की रचना को वो अपने आंखों के सामने नृत्य करते हुए, साकार होते हुए देखते। इन पंक्तियों में कवि की उन्मादक स्थिति का चित्रण, इन दीज लाइन द ब्यूटिफुली डेपिक्ट द poetic state of फ्रेंजी, एक बहुत ही उन्मादक स्थिति का चित्रण किया गया है बड़ी सुंदर ढंग से इन पंक्तियों में। इन पंक्तियों में आगे कहा गया कि संगीत की पुनः स्मृतियों से द रिकलेक्शन ऑफ म्यूजिक, संगीत की पुनः स्मृतियां वुड सो मच इंस्पायर, यानी इतना अत्यधिक उसे प्रोत्साहित करती, दैट ही वुड बी लेट द पोएटिक क्रिएशन, तो कि वह उस इंस्पायरेशन से, उस प्रेरणा से वह एक सुंदर कवित्वमय रचना कर सकता। उस इंस्पायरेशन से, जो कि म्यूजिक की पुनर्स्मृति के कारण उसके अंदर होती है, उस प्रेरणा से वह एक नए कवित्वमय रचना को साकार कर सकता था, बना सकेगा। संगीत की पुनः स्मृतियां, कवित्वमय रचना वो कर सकेगा। और आनंद की इस चरम अवस्था में, यानी दिस स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्सटेसी, चरम अवस्था, आनंद की चरम अवस्था में उसकी आंखों में चमक उठती, हिज आईज वुड शाइन ब्राइटली, उसकी आंखों में चमक उठती, और उसके वाल, हिज ईयर वुड फ्लाई इन द एयर, हवा में तैरते, लहरा उठते। और फिर इस कवि की एक स्थिति अत्यधिक भयानक दिखाई देती कि सभी उपस्थित लोग भयभीत हो जाते और वो अपनी आंखें बंद कर लेते। ड्रीडफुल स्टेट होती, सभी अपनी आंखें बंद कर लेते। वे लोग उस एक स्वर्गीय जीव समझते, हेवनली बॉडी बीइंग समझते उसे, एंड इससे जिसने कि मधुर रस चख लिया और स्वर्गीय अमृत का पान कर लिया है, द मिल्क ऑफ पैराडाइज एंड हनी ड्यू, इन दोनों का उसने वो कर लिया है। वे डरते थे कि कहीं उन पर वो जादू न चलाए, इसलिए वह उसकी 3 बार परिक्रमा करते हैं उसके उस जादू से बचने के लिए। यह चित्रण प्राकृतिक और पराप्राकृतिक भावना को चित्रित करता है, उसका एक मिश्रण है, और हर पंक्ति रस में विचित्र भयावह वातावरण पर जोर देती है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आपने इस पाठ के एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगले पाठ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।